We have with us a very special guest, Mrs. Jyotsna Shinde, who is very well experienced as a secondary teacher past 16 years. She is serving as an education officer class A in Maharashtra State Public Service Commission. Ma'am has worked as an education officer at District Parishad Kolhapur from 2014 to 17. She was also working as an editor of Jeevan Shikshan, a magazine published by Maharashtra government at State Council of Educational Research and Training. In year 2018, Ma'am has been Assistant Director of School Nutrition Cell Maharashtra. She worked as Administration Officer, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation. And now she is working from 2021 as an Education Officer, Raigad, and Secondary Curriculum Education Officer, Jilla Parishad, Alibag. Here are some of the remarkable works. She has awarded as Duty Motivation Award in 2022 by Honorable Excellency, the Governor, State of Maharashtra. Ma'am got the nomination for National Award by Maharashtra School Education Department. While she was the editor of Jeevan Education, all the dignitaries appreciated her during the publication of Suvarna Veil at Golden Jubilee Year of Maharashtra Education and Cultural Conference. In year 2015-16, she had organized and successfully planned Jnana Jyoti Savitribai Phule Secondary Educational Quality Development Campaign at Kolhapur. She also implemented Kolhapur Talent Research Exam all over the district. On occasion of International Women's Day, she was awarded and aired in first episode of Yashaswini Mahila on B News channel. In 2022, her articles were published in Educational Diwali Special Issue. Maharashtra Journalist Association appreciated her articles in Navratri Diwali Special Issue and bestowed her with Navadurga Award. Ruturaj Foundation has been established since 2005. Every year, 5 students are adopted and all their educational expenses up to 10th standard are covered. Through this, RO water filter systems have been also installed in 2 primary schools to ensure that children in rural areas also get clean drinking water. The book Turning Point was published by Maharashtra Council of Education Research and Training, in which the Dream Come True article was famous. While working in Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, she successfully implemented various educational schemes by creating online education platform under School Closed Education Continues program so that no student is deprived of education. So ladies and gentlemen, may I now invite on stage our honorable chief guest for today, Mrs. Jyotsna Shinde, the District Education Officer. नमस्कार. आज MDM फ्युचर स्कूल रोहा यांच्या ॲन्युअल प्रोग्रॅम 6 ॲन्युअल प्रोग्रॅम की ज्याची स्कीम आहे आझाद. ही खरोखरच एक खूप सुंदर अशी स्कीम आहे. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आदरणीय चेअरमन संदीप तटकरे साहेब, संस्थेचे पदाधिकारी, या शाळेचे सगळं कर्मचारी, शिक्षक, स्टाफ आणि आपण सर्व पालक, खूपच मोठ्या संख्येने आपण इथे उपस्थित आहात आणि छोटे माझे मित्रमैत्रिणी. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मला वाटतं आपण 2 वर्षानंतर हा कार्यक्रम साजरा करत आहोत. आपणा सर्वांना पुढचा कार्यक्रम पाहण्याची उत्सुकता आहे हे मला माहीत आहे. त्यामुळे मी आपला अजिबात जास्त वेळ घेणार नाही आहे. अगदी थोडक्यात मी माझं जे मला थोडंसं सांगायचं ते सांगेन, आणखी आपली मी रजा घेईन. आपण नुकताच हा जो कार्यक्रम पाहिला की जी मुलं, छोटी छोटी मुलं होती, ती नृत्य काय करतात याच्यापेक्षा त्यांच्यामध्ये ते स्टेज डेअरिंग आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे आणि ते इतक्या लहान वयात आपण त्यांच्यामध्ये रुजवत असतो. आणि म्हणूनच शाळेला हे एक संस्काराचं केंद्र म्हटलं जातं. इथं आपण आपल्या भारतीय संस्कृतीचं संवर्धन करत असतो, वाढ करत असतो, जतन करत असतो. आणि आजची ही जी पूर्ण थीम आहे ही पूर्णतः आपल्या भारतीय संस्कृतीवर आधारित आहे की आज पुन्हा एकदा आपल्याला मूल्यांच्याकडे जायचं आहे, आपली संस्कृती जपायची आहे
आणि हे सर्व करत असताना आपल्या ह्या छोट्या छोट्या मुलांच्यावर आपल्यावर संस्कार करायचे आहेत. आणि आज अशी कंडिशन आहे की मुलं शिकत आहेत. मी सर्व पालकवर्गाला किंवा शिक्षक वर्गाला असं सांगेन की मुलं शिकत आहेत, खूप काही त्यांच्याकडे शिकण्यासारखं आहे. आज शिक्षकांचं एवढंच काम आहे की त्यांनी शिकायचं कसं हे त्यांना शिकवायचं आहे. आज कोविडमुळं ऑनलाईन शिक्षण इतकं आपण पुढे फास्ट गेलेलो आहोत की पूर्ण शिक्षणाचं ज्ञानाचं भांडार विद्यार्थ्यांच्या समोर आहे. मागचं जर आपण थोडा विचार केला तर आपण विद्यार्थ्याला मोबाईल, कॉलेजच्या विद्यार्थ्याला सुद्धा मोबाईल द्यायला पालक विचार करायचे, द्यावं की न द्यावं. पण आजची परिस्थिती अशी आहे की प्रत्येक छोट्या छोट्या मुलांच्या हातात मोबाईल ही एक आवश्यक बाब झालेली आहे. मग इथं महत्त्वाचं आहे की त्या विद्यार्थ्यांना त्यातून काय शिकायचं किंवा काय पाहायचं, आणि हेच आपलं मार्गदर्शन करण्याचं आपलं काम आहे. पालकांचं असू दे, शाळेत शिक्षकांचं असू दे, त्यांना काय घ्यायचं आहे, आणखी काय पाहायचं नाही, कारण खूप काही त्यांच्यासमोर येतं. हेही आपण त्यांच्यावर संस्कार करणं खूप गरजेचं आहे. बाकी सर्व आपण शिकत असतो. आज आपण पाहतो आहोत की करिअरची इतकी काही दालनं समोर उभी आहेत की छोट्या छोट्या कौशल्यावर सुद्धा मास्टर लोक आपल्याला उपलब्ध होत आहेत. आपण हे पुस्तकी ज्ञान जर घ्यायचंच आहे, पण याच्याशिवाय विद्यार्थ्याची जी आवड आहे ती आवड पाहून तुम्ही विद्यार्थ्याला पुढे तुमच्या पाल्याला संधी द्या. कारण त्यांची आवड, आणि त्यांना एकच सांगा की तुम्ही जे काही निवडाल त्याच्यामध्ये बेस्ट करा. काही व्हॉटेवर कोण सर्वच तुम्हाला इंजिनियर आणि डॉक्टर होतील अशी अपेक्षाही करू नये. आणि आपल्या समाजाला फक्त डॉक्टर, इंजिनियर यांचीच गरज असते असं नाही. छोटे छोटे कौशल्य आज आपण पाहतो आहोत की आपल्या अवयवाच्या, आपण अगोदर फक्त MBBS डॉक्टरांच्याकडे जात होतो. आज तुम्हाला छोट्या छोट्या अवयवाचे सुद्धा मास्टर असलेले आपल्याला दिसतील आणि आपण त्यांच्याकडेच जात असतो. याच्यामध्ये हे सगळं आपण शिकतच आहोत, पण विद्यार्थ्याला त्यांच्या मनाप्रमाणे शिकण्याची संधी द्या. आणखी या जे सध्याची स्थिती आहे, सामाजिक स्थिती, याच्यामध्ये अभ्यासी किंवा करिक्युलम जे काय असेल ते आपण शिकतच असतो. पण या 21व्या शतकात जर मुलांना काय द्यायचं असेल तर ह्या जे 4 C स्किल आहेत ते जाता जाता मी तुम्हाला सांगते. पहिलं आहे क्रिएटिव्हिटी, सृजनशीलता, कम्युनिकेशन, संभाषण कला. तिसरं C आहे कोलॅबोरेशन, की जी एकत्रित काम करण्याची जी क्षमता असते ती. कारण आज आपण पाहतो आहोत की प्रत्येकाच्या घरी 1 किंवा 2च आपल्याला अपत्य असतं. 2ही आता रेअरली झालेले आहेत. प्रत्येकाच्या घरी 1च आपल्याला अपत्य दिसत असतं. त्यामुळे ही जी समायोजन क्षमता असते ही सुद्धा विद्यार्थ्यांच्यामध्ये येणं खूप गरजेचं आहे. आणि चौथं C आहे क्रिटिकल थिंकिंग, कारण समस्या सोडवण्याची एक कला ही खूप असणं गरजेचं आहे. कारण शिक्षणाचं ध्येय आहे एक चांगला माणूस बनणं, आणि चांगला माणूस बनत असताना जीवनामध्ये खूप संघर्ष येत असतात. आपण या सर्व संघर्षातून आलेलो आहोत. आपले पाल्यही यातून आलेले आहेत. तर यांना ही जीवन जगत असताना संघर्ष करावा लागेल. त्या संघर्षाला आपल्याला तोंड द्यायची शक्ती त्यांच्यामध्ये आपल्याला निर्माण करायची आहे. त्याचबरोबर एक पर्यावरण स्किल हेही आपण त्यांच्यामध्ये निर्माण केलं पाहिजे. जेव्हा पुढची औद्योगिक क्रांती होईल तेव्हा तुम्हालाही, अजून आपल्यालाही माहीत नाही की आपले पाल्य कशात करिअर करतील. म्हणजे एवढी वेगवेगळी क्षेत्र पुढे निर्माण होणार आहेत. आणि हे सगळं करत असताना मी एक तुम्हाला अगदी थोडक्यात सांगेन की तुम्ही विद्यार्थ्यांना, जसं आता मगाशी इथे जे सांगितलं गेलं सूत्रसंचालनमध्ये, की एक स्वप्न आहे, आपल्या देशासमोर सुद्धा एक स्वप्न आहे. आणि निश्चितच आपण पुढील 10-12 वर्षात एक महासत्ता बनणार आहोत. तिकडे आपलं पाऊल पुढे आपण टाकतो आहोत. हे सगळं करत असताना प्रत्येक विद्यार्थ्याला, प्रत्येक मुलाला एक स्वप्न द्या. तुम्ही पालकांनी द्या, शिक्षकांनी द्या, आणि ते स्वप्न पूर्ण करण्याचं ध्येय त्याच्यासमोर ठेवा. जसं आपल्या अब्दुल कलामांनी आपल्याला सांगितलं आहे की स्वप्न नेहमी मोठी पहा, सर्वोच्च पद घेईन. आणि ते मी सतत 12 वर्षे याच्यासाठी मेहनत केली. म्हणजे आपल्या विद्यार्थ्याला आपण नुसतं स्वप्नच द्यायचं नाही, तर ते स्वप्न पूर्ण करण्याची क्षमताही त्याच्यामध्ये द्या. त्याच्यासोबत तुम्हाला मेहनत लागणार आहे. नुसती मेहनत ही थोड्या दिवसाची असणार नाही आहे. तुमचं जर स्वप्न मोठं असेल तर तुमची मेहनत ही तेवढीच असणार आहे. त्यामुळे त्याला मेहनत करण्याची त्याला महत्त्व सांगा.
त्या मेहनतीमध्ये 1-2 दिवसाची मेहनत नाही. जसं मी माझं उदाहरण सांगितलं, मी 12 वर्ष शिकत होते आफ्टर मॅरेज. तर असे त्या सातत्य असणं त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं होतं. पुढे मला माहिती नव्हतं की मला ही संधी मिळेल MPSCची. जेव्हा 16 वर्षाने फर्स्ट टाईम ही परीक्षा आली आणि त्या संधीचा मी फायदा घेतला. तर हे सातत्य हवं. सातत्याबरोबर तुमच्यामध्ये श्रद्धा हवी, कारण श्रद्धा असल्याशिवाय आपण काहीच करू शकत नाही. भले आज तंत्रज्ञान कितीही मोठं होऊ दे, सायन्स कुठेही जाऊ दे, पण प्रत्येकाला जवळ ती श्रद्धा असणं खूप गरजेचं असतं. श्रद्धा फक्त परमेश्वरावरच असावी असं नाही. श्रद्धा कशावरही असू शकते. एखाद्या पुस्तकावर असू शकते, आपल्या गॉडवर असू शकते, आपल्या एखाद्या आयुष्यातील आदर्श व्यक्तीवर असू शकते. ही श्रद्धा आणि सगळ्यात शेवटी म्हणजे आत्मविश्वास. तुम्ही जे काही मिळवाल ते आत्मविश्वासाच्या जोरावरच मिळवू शकता. जसं आता संदीप सरांनीही सांगितलं की त्या मुलांच्यामध्ये आत्मविश्वास होता, त्यांच्यामध्ये स्टेज डेअरिंग होतं. भले ते नृत्य कसेही करत असतील, पण इथं येऊन ते करण्याची सुद्धा एक आत्मविश्वास लागतो. तो त्यांच्यामध्ये आपल्याला दिसत होता. अगदी मनसोक्तपणे ती बागडत होती आणि त्यांना आश्चर्य वाटत होतं की हे लाईटिंग वगैरे कसं दिसतं आहे. त्यामुळे ते स्वतः नाचायचं विसरून बाकी सगळ्या गोष्टीचं ते ऑब्झर्वेशन करत होती. आणि हे सगळं तुम्ही विद्यार्थ्यांना द्यायचं आहे. अब्दुल कलामांचंच एक वाक्य आहे की जे मला खूप आवडतं. सपने तो ओ नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो ओ नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो ओ होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते. आणि हीच जिद्द आपल्या विद्यार्थ्यांच्यामध्ये निर्माण करा असं मी आपल्याला सांगेन. आणि इथं मला जी बोलण्याची संधी दिली, आज एवढा माझा सन्मान केला, याच्याबद्दल मी आपणा सर्वांचं अगदी मनापासून धन्यवाद म्हणते. थँक्यू. धन्यवाद. Thank you, ma'am, for your golden words. We are honored to hear from you. And now, I would request Amruta ma'am to take over the next part. सर्व पालकांसाठी एक महत्त्वाची सूचना. विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणानंतर 20 मिनिटांनी तुमच्या मुलांना कार्यालयाच्या प्रवेशद्वार परिसरातून घ्यावे. विद्यार्थ्यांच्या सादरीकरणानंतर 20 मिनिटांनी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वार परिसरातून तुमच्या मुलांना घ्यावे. आणि प्रथम IK1, त्यानंतर IK2 आणि मग IK3 असे पेरेंट्स तुम्ही क्लास वाईज जाऊन तुमच्या मुलांना प्रवेशद्वारात परिसरातून घ्यावे. धन्यवाद. Well, ladies and gentlemen, this is not the time to say goodbye, since our next phase of the event is going to be non-stop. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God by making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our chief guest, Mrs. Joshna Shinde, the DEO, who despite her busy schedule has found time to grace this occasion. We are grateful to Mr. Sandeep Ji Tatkare, the chairman of Kolad Vibhag Shikshan Prasarak Mandal, for his words of encouragement. His able guidance has always encouraged us. I thank him for his kindness, his interest, his hospitality, and continued support. Our sincere thanks to Mr. Prakash Ji Sarkale, Mr. Ajit Telange, Dr. Shankar Munde, and Mr. Vipul Masar for their valuable contribution, guidance, and encouragement in all our efforts. I thank Mr. Devendra Sangavkar for his stewardship support, vision, and commitment. I thank our principal for her unstinted support for this function. My heartfelt thanks to the coordinators and teachers who have worked hard to ensure that this event becomes a memorable success. I thank all the distinguished invitees present here, our dear past students and our dear parents for accepting our invitation. I thank all the members of the media for evincing interest in covering the event. Once again, I thank you for all your attention. Now, I hand over the mic to Mrs. Madhura Keluskar. थँक्यू मॅम. पालकांसाठी एक महत्त्वाची सूचना.
IK1, IK2 आणि IK3च्या पालकांनी ऑफिस एरियाजवळून मुलांना घ्यावं, पण क्रमाने जा प्लीज. IK1च्या पालकांनी आधी जा, थोड्या वेळाने IK2 आणि मग IK3, म्हणजे आपल्याला गर्दी टाळता येईल. धन्यवाद. Free India is an easy term to hear today. However, freedom was not free. It came at a huge cost. Ladies and gentlemen, let us all go back to our dear Dadi to listen to her stories about our beloved country and its struggle for its freedom. Yes, the story of sacrifice, the story of the fight, the story of a lion heart, a brave warrior आज़ाद. कहानी आज़ादी के संघर्ष की. दादी, भारत की कहानी तो सुन ली, लेकिन कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है. हाँ दादी, हमारा भारत तो इतना महान है, तो और भी कुछ बताओ ना. अरे बच्चों, भारत के बारे में जानना है तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी. यह इतना विशाल है, रंगों से भरा है, विविधताओं से भरपूर है, मगर फिर भी एक है. वाह दादी, इतना सुंदर है हमारा देश. हाँ मेरे बच्चों. तो दादी सुनाओ ना, हमारे देश के बारे में और भी सुनना है. अच्छा बाबा, तो फिर सुनो. अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो. किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा. किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा. धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला. ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा. बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए. ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा. गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं. पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए. ल सुन लो, कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी. ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा. दादी दादी, क्या हमारे देश ने कुछ नहीं किया? क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो? ये मैं नहीं, मेरा अमेरिका का दोस्त कहता है. हाँ दादी, वह यह भी कहता है कि अमेरिका ने चांद पर पहला कदम रखा. अरे बच्चों, हमारे देश ने दुनिया को जो दिया है वह किसी और देश ने कभी सोचा भी नहीं. क्या दादी, ऐसा क्या दिया है हमारे देश ने? जीरो. क्या? जीरो? हाँ. जब जीरो दिया मेरे भारत ने,
भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। अब समझ में आया बच्चों, क्यों हमारा देश महान है? हाँ दादी। इतना जान लिया है तो भारत की आजादी की कहानी सुनोगे? क्या हमारा देश कभी कैद में था? हाँ, अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर कब्जा कर लिया था और हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे वीरों ने बलिदान दिया था। दादी, हमें उन वीरों की कहानी सुननी है। मैं तुम्हें भारत के उस वीर सपूत की कहानी सुनाती हूँ जिसने बहुत कम उम्र में ही देश की आजादी के सपने देखे थे। कौन है वो? आजाद,
चंद्रशेखर आजाद। तो सुनो कहानी उस शूरवीर की जो भिड़ गया अंग्रेजों से, जिसे कभी कोई सिपाही पकड़ न पाया, जो आंखों के सामने से ऐसे ओझल हो जाता जैसे पत्तों से ओस की बूंदे। हाँ, बहरूपिया, इस देश का एक शेर बेटा, आजाद, चंद्रशेखर आजाद। रात शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उद्धारी। भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा। बहरे हो गए गोरे जब वो, हर हर महादेव हुंकारा। छोड़ अहिंसा की रटबाजी, सबको ठोका बारी बारी, जियो तिवारी जने उद्धारी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसे क्रोध भुजंगी। तीसरी आंख खुली तो कापे, थर थर दुष्ट फिरंगी। अंग्रेजों के शव पे नाचा, नीलकंठ का वो अवतारी, जियो तिवारी जने उद्धारी। देश के दुश्मन कान लगाए, सुनो जो पंडित पुत्र सुनाए। गाड़ दिए जाओगे जिंदा, अगर जनेऊ से टकराए। दुर्वासा के श्राप से डरना, जनहित में चेतावनी जारी, जियो तिवारी जने उद्धारी, जियो तिवारी जने उद्धारी, जियो तिवारी जने उद्धारी। काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बड़ी भीड़ थी। भीड़ के बीच में से हथकड़ी से जकड़े 16 साल के एक बालक को 4 सिपाही बड़ी सतर्कता से ले आए। बालक के मुखमंडल पर स्वाभाविक निर्भीकता और आत्मविश्वास के भाव थे। अदालत में पहुंचने पर बालक की हथकड़ियां खोल दी गई। मुकदमा आरंभ हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? आजादी। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। तुम काम क्या करते हो? भारत माता को स्वतंत्र कराने की साधना। ऐसे बेढंगी उत्तर क्यों देते हो? जानते नहीं ये अदालत है। मेरे सभी उत्तर सही हैं। क्या तुमने सिपाहियों पर हमला किया? हाँ, क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों को बूट की ठोकरें मार रहे थे और गालियां भी बक रहे थे। इसे 15 कोड़े लगाकर छोड़ दो। जिस हरियाली से सांस मिलती है, पहचान देने वाली गोंड जाति दिल से तुझे पुकार रही है। सुन रहा है क्या? कोमुरम भी मूडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। कोमुरम भी मूडो, रग रग की ज्वाला सा जलना है तुझको, जलना है तुझको। जुल्मी के पैरों में कुचला रहा, शाखों से टूटा तू पत्ता नहीं वो, पत्ता नहीं वो। जुल्मी की चौखट को घर जो कहाँ, फिर ये जन्म तेरा सच्चा नहीं हो, सच्चा नहीं हो। कोमुरम भी मूडो, सूरज के शोलों
माटी से टूटा ये धागा वही हो, धागा वही हो। कुमुरम भी मूडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। बालक कोड़े खाता रहा और हर कोड़े पर भारत माता की जय के नारे लगाता रहा। कोड़े खाकर जब वो बालक जेल से बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर लहूलुहान था, किंतु उसके चेहरे पर शांति और दृढ़ता थी। यही बालक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रशेखर आजाद अब 20 बरस के हो चुके थे। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही बरस के आजाद पूरी तरह से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। क्या हुआ पंडित जी,
इतने खुश क्यों हुए जा रहे हो? अरे तुम देख नहीं रहे हो चारों तरफ क्या चल रहा है? वैसे तो मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता, लेकिन गांधी जी का यह असहयोग आंदोलन कुछ अलग ही रंग ला रहा है। हिंदुस्तान के चारों ओर से लोग एक साथ हो रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में पूर्ण स्वराज्य आएगा, हमारा देश और हमारा राज होगा। ये तो सच है, लेकिन डर लगता है कि कुछ अघटित न हो जाए। अघटित? क्या अघटित? पंडित जी, आप गांधी जी को तो जानते हो। अगर इस आंदोलन के दौरान जरा सी भी हिंसा हुई तो गांधी जी आंदोलन वापस ले लेंगे। और सुनने में भी यही आ रहा है कि कल ही हुआ था ना चौरी चौरा का मामला। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित जी, पंडित जी। अरे क्या हुआ? कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया? बोलो क्या हुआ? पंडित जी, जिसका डर था वही हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब कैसे आएगी आजादी? क्या हमारे नसीब में उन गोरों की गुलामी ही लिखी है? नहीं, गुलामी तो नहीं करेंगे। या तो मारेंगे या फिर देश के लिए मरेंगे। आओ मनमत, आओ। आजाद, मुझे पता है कि आपके हौसले देश के आज़ादी के लिए कितने बुलंद हैं। आप अकेले नहीं हैं इस जंग में, आप जैसे और भी दीवाने हैं आज़ादी के। मैं आपको उनमें से ही एक को मिलवाना चाहता हूँ। वह है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जनक श्री राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। चलो पंडित जी, हम और आप मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के तहत हमारे भारत को आज़ादी दिलाएं। एक तरफ आजाद और बिस्मिल आजादी के लिए मिल गए, वैसे ही भगत सिंह और उसके साथी एचआरए में शामिल होने वाले थे। एचआरए का पैम्पलेट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सानियाल बाबू ने बनाई है। पुराने सभी क्रांतिकारी है इसमें और टारगेट है आजाद भारत। ये हुई ना बात, कभी होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी, अब ये और एचआरए। यार, इन ऑर्गेनाइजेशन से कुछ होने नहीं वाला।
तो फिर किससे होना है? यार भगत, बुरा मत मानना, यही सच्चाई है। कुछ आजादी नहीं आनी है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से। तो फिर किससे होगा? हाँ, किससे होगा? प्रणाम सर। सुखदेव, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। तुम सोचते हो ऐसा गुस्सा करने से अंग्रेज हमारा देश छोड़कर भाग जाएंगे? तो ठीक है सर, कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे चुप रहने को कौन कहता है? विरोध तो जरूरी है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। अहिंसा? नहीं, अवाम अपने आप में इतना ताकतवर है कि उसे अगर सही दिशा दे जाए तो बड़ी से बड़ी सत्ता को उखाड़ कर फेंक सकता है, जैसा कि रूसी क्रांति में कम्युनिस्ट पार्टी ने कर दिखाया। जो रूस में हुआ वो यहाँ भी हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। एक ऐसी पार्टी है जो वही काम यहाँ करने की कोशिश कर रही है, जो डायरेक्ट एक्शन पे विश्वास रखती है। कौन सी सर? अभी जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे, HRA? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहोगे? बिल्कुल सर। सोच लो, ये रास्ता खतरों से भरा है। एक क्रांतिकारी के लिए उसकी पार्टी, उसका मकसद सब कुछ है। फिर उसके जीवन में ना कोई आराम है, ना कोई खुशी, ना सुख, ना प्यार, ना घर, ना परिवार, कुछ नहीं। हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है सर। तो आज ही निकलो कानपुर के लिए और वहां जाकर तुम राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलोगे। प्रणाम राम प्रसाद जी। आओ भगत सिंह आओ, हम राम प्रसाद बिस्मिल। विद्यालंकार जी की चिट्ठी मिली हमें। क्यों आना चाहते हो हमारी पार्टी में? जिस वजह से आपने पार्टी बनाई, अपनी वजह बताओ। वजह सबकी एक है, देश की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़के। अंधेरे में 3-4 छोकरों को पीट देने को लड़ना नहीं कहते। वह शुरुआत थी। इतिहास कहता है कि क्रांति तब कामयाब होती है जब क्रांतिकारी पार्टी अवाम के साथ। अच्छा, 4 किताबें क्या पढ़ ली? चले क्रांति खेल ले। जिस दिन पुलिस के हाथ पड़ गए ना, बर्फ पर नंगा लटाकर चाबुक पड़ेंगे कि सारी की सारी गर्मी उतर जाएगी। जाओ बेटा जाओ, यह संघर्ष खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है मिसबिल साहब, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपका एक बूंद खून आने वाले नस्ल के सारे खून में उबाल ला सकती है, या नहीं? अपने जीवन में मैंने इतना कुछ देख लिया है कि बर्फ की सिल्लियां और चमड़े के चाबुक मेरे इरादों को हिला नहीं सकती। वाह कॉमरेड्स, ये हमारे नए साथी भगत सिंह। संभाल होए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए तेरा ना जाए ओ तेरा ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल होए तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल के तू अपनी तकदीरें पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले पल्ले तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले 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 पल्ले
जट्टा है यही तो अपना इरादा। फौलादी है बाहें तेरी, पत्थर को है सीना, कर दे इन गोरों का अब तो मुश्किल जीना। तेरा लुट ना जाए, तेरा लुट ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल ओए। ओ पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए। तेरा लुट ना जाए, ओ तेरा लुट ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल गोए। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर ले इनकी पल्ले पल्ले। बल्ले बल्ले चक्कू टोड़ो 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 बल्ले ओ बल्ले चक्कू टोड़ो 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 बल्ले बल्ले चक्कू टोड़ो 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 बल्ले ओ बल्ले चक्कू टोड़ो 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 बल्ले बल्ले चक्कू टोड़ो 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 बल्ले ओ बल्ले। राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए अधिक से अधिक धन की जरूरत थी। 7 मार्च 1925 कहीं से भी धन प्राप्त होने की स्थिति में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह खान और उनके साथियों ने 2 लूटों को अंजाम दिया। भाई आजाद, अब लगता है कि इस मिट्टी का कर चुकाए बिना ही हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। नहीं बिस्मिल नहीं, गुलामियों की बेड़ियों में इतनी ताकत नहीं है और गोरों के लहू में इतनी हिम्मत नहीं है। हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। ठीक कहते हो आजाद, हमारे हौसलों और हमारे सपनों से ज़्यादा मजबूत इनकी जंजीरें नहीं हैं। लेकिन करे तो करे क्या, गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और हमारे सारे नेता भाग गए, पर मैं अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। हाँ बिस्मिल, अब सारा दारोमदार तुम पर है, हमारा खून अभी सूखा नहीं है। क्या कहते हो रोशन भाई, क्या करना चाहिए हमें? बिल्कुल सही अशफाक भाई, हम सब तैयार हैं। तैयार हैं हम सब, पर करे तो क्या करे, और हमारे पास हथियार भी तो कम है। कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाता तो कुछ करते। क्या कहते हो बिस्मिल? भाइयों, समस्या बहुत गंभीर है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम किसी सेठ या साहूकार को लूट कर नहीं किया जा सकता। मगर आप लोग चाहें तो मेरे दिमाग में एक प्लान है। क्या प्लान है, बताओ। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो हर स्टेशन पर पैसे जमा करती हुई लखनऊ पहुंचाती है। यदि हम इन पैसों को लखनऊ पहुंचने से पहले उठा ले तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। परंतु बिस्मिल, क्या ये डकैती नहीं कहलाएगी? एक क्रांतिकारी के लिए ये करना क्या उचित होगा? यह कैसी बात कर रहे हो? यह देश की आज़ादी के लिए करेंगे, हमारे अपने स्वार्थ के लिए नहीं। यह देश का पैसा है और देश के काम आ रहा है। तैयार हैं हम सब। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान,
प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। ट्रेन काकोरी पहुंचने वाली है। ट्रेन के ऊपर आजाद और बिस्मिल ट्रेन के अंदर कितने अंग्रेज अफसर हैं उसकी जांच कर रहे हैं। अंग्रेज अफसर करीब 20-25 है। हमें एक्शन को रोकना होगा। अशफाक को रोको, जाओ। रुकिए अशफाक। हम किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारेंगे। सब नीचे झुकिए, झुकिए नीचे सब। हम किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारेंगे। ताले की चाबी कहाँ है? ये आप सही नहीं कर रहे। चुपचाप चाबी दो। मेरे पास कोई चाबी नहीं। हटो। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के पैसे नहीं बल्कि उनकी इज्जत लूट ली थी। अंग्रेजी हुकूमत के लिए ये खुली चेतावनी थी। उन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी फौज लगा दी। बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह पकड़े गए। उन पे मुकदमे चले और आखिर में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। आजादी के दीवानों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस
नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। 10 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला के मैदान पर एक सभा बुलाई गई। इस सभा का मकसद था HRA को HSRA में परिवर्तित करना। इस सभा का नेतृत्व आजाद कर रहे थे। इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी भी शामिल हुए। आजादी हमारा मकसद नहीं है, ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत उन अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। ये नामुमकिन कल्पना है पंडित जी, बिल्कुल असंभव। मुश्किल है जतिंदा, असंभव नहीं। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम इस बात को लेकर आज नहीं समझेंगे और मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कल एक आज़ाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बन के रह जाएगा। कॉमरेड्स, हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन, और यह हमारी पार्टी के नाम पे साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हाँ, हम आपके साथ हैं। तो कॉमरेड्स, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। देश मेरे मेरी जान है तू,
देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, निशाने पे जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू।